ویلکم بیک ناظرین. سر لال چند صاحب، اصل میں بریک سے پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ وحید گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کی ایک شکایت ہے کہ ہماری ملاقات نہیں کرائی جاتی، لیکن جب ملاقات کرائی گئی، اب ملاقات کے بعد یہ دیکھیں کہ پھر آپ کی پارٹی کے اندر ہی تنازع شروع ہو جاتے ہیں. فار انسٹنس میں اگر آپ کو اگزامپل دوں تو شیر افضل مروہ صاحب آپ کی پارٹی کا ایک ٹائم حصہ تھے. اگر آپ اب ایکٹیو نہیں ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ حقیقت ہے کہ مجھے نہیں اس چیز کا اندازہ، آپ اس چیز کی ایکسپلینیشن کریں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمشیرہ جو ہیں بانی پی ٹی آئی کی علیمہ خان صاحبہ، ان کی بھی ملاقات نہ کرائی جائے، وہ بھی مجھے جو ہے وہ پارٹی کے مفاد میں نظر نہیں آتی. تو اتنی بڑی بات کر دینا سر، پھر آپ دیکھیں پھر آپ کہتے ہیں کہ ملاقات نہیں ہوتی. سر میں سب سے پہلے تو آپ کو شاباش دیتا ہوں جس شخص کو پاکستان تحریک انصاف کے پیٹرن ان چیف عمران خان صاحب کے کہنے پر پارٹی سے خارج کر دیا گیا. جی سر. اب اس کا بیان لے کے دیکھیں، یہ موجودہ حکومت اور ان کے ہینڈلرز جی جو ہے یہ وہ میڈیا بھی کنٹرول کرتے ہیں، اس طرح لوگوں کو بھی اسٹیٹمنٹس دلواتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو بحث میں لے آتے جو اس قوم کے لیے بالکل فضول قسم کی بحث ہے. نواز شریف سر جیل میں وہ تو ہوتے چلے تھے. پارٹی کا حصہ نہیں ہے، لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کی پارٹی کا حصہ ہیں، وہ سی ایم ہیں. بیرسٹر صاحب ہیں، اب مشال یوسف زئی صاحبہ ہیں جو آپ کی ابھی سینیٹر بنی ہیں. تو وہ دیکھیں پولیٹیکل پارٹی کے اندر کیسے دھڑے بنے ہوئے ہیں. چلیں یہ تو ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے. میرا جو کوسچن آپ سے تھا کہ 14 اگست کے حوالے سے کیا اللہ عمل ہے ابھی تک کی؟ سر نکل رہے ہیں 14 اگست کو؟ بالکل نکلیں گے، یہ ملک ہمارا ہے. ٹھیک ہے. 14 اگست آزادی کا جشن ہم منائیں گے، پورے پاکستان میں منائیں گے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس ملک کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ مقبول ترین پارٹی ہے، اور سب سے زیادہ لوگ اس پارٹی کو پسند کرتے ہیں. تو اگر پاکستان تحریک انصاف کیوں نہ منائے اپنا جشن، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا. پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے جشن ہدایت منانا ہے جاری سر، کر دی ہے. جی جشن منانا ہے سر. ہاں یقیناً جشن منائیں گے، ہم جشن منائیں گے، اپنی بات رکھیں گے، لیکن یہ تو ہمارا سب کا فرض ہے اس دن کو جشن منانا. کون نہیں منائے گا جشن؟ ہم وہ پی ٹی ایم والے نہیں ہیں جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم 14 اگست کو آزادی کا دن نہیں منائیں گے اور ہم آزادی کی تحریک چلائیں گے. وہ پی ٹی ایم نے کہا تھا. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا جشن ہوگا، آزادی کا دن ہوگا. سر یقینی طور پر یہ محمود خان ملک میں محمود خان اچک زئی صاحب پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں ہیں، آپ اس چیز کو مانتے ہیں سر؟ اس کے صفوں میں محمود خان اچک زئی صاحب سر، ان کی اپنی پارٹی ہے، ان کی پارٹی ہے لیکن آپ کے ساتھ ہے نا سر اس وقت، اور وہ ان کو بھی آپ نے ساتھ رکھا ہوا نا احتجاج کے اندر. یہ بات غلط تو نہیں ہے؟ اس میں ذرا آپ اس کو ویریفائی کیجئے گا پلیز. عمر میں نے کہا سر ہم ان کے یہ الفاظ ہیں کہ 14 اگست جو ہے وہ آزادی کا دن تو ہے لیکن ہم آزاد نہیں ہیں. 14 اگست کو آزادی کیسے منائیں ہم؟ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ جشن منائیں گے ہم. یہ تو ٹھیک ہے عمر، دیکھیں آپ چیزوں کو غلط سمت میں نہ لے جائیں. آپ دیکھیں جو قائد اعظم محمد علی جناح نے جیسا پاکستان چاہا تھا کہ ہم ویسا پاکستان بنا پائے ہیں. کیا یہ وہ پاکستان ہے جو کرپشن فری ہے؟ کیا یہ وہ پاکستان ہے جس میں غربت نہیں ہے؟ کیا اس وقت پاکستان میں قائد اعظم نے یہ سوچا تھا جو پاکستان میں بناؤں گا وہ 70 سال کے بعد جو اتنا امیر ترین ملک ہوگا جس میں معدنیات ہوگی، 4 موسمیں ہوں گی، ایگریکلچر ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن اس کی آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ اپنا پاورٹی لائن سے کم نیچے ہوگی، اور وہ ان کو کھانے پینے کے لالے پڑے ہوئے ہوں گے؟ کیا ایسا پاکستان سوچا تھا قائد اعظم نے؟ کیا قائد اعظم نے یہ سوچا تھا کہ ہم امریکہ سے یا ٹرمپ سے میٹنگ کر کے خوش ہو جائیں گے؟ نہیں. ہم حقیقی آزادی وہ آزادی ہے جہاں پہ اس ملک کا ہر شہری خود کو برابر سمجھے، قانون سب کے لیے برابر ہو، آئین پہ عمل ہو. وہ پاکستان، وہ تو ہم تو یہ تو ہمارا نعرہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ ہمیں حقیقی آزادی کی طرف جانا ہے اور وہ پاکستان بنانا ہے جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا. ٹھیک ہے سر. شیراز صاحب، سر یور ٹیک آن دس سچویشن کہ جس طریقے سے لال چند صاحب نے بھی کہا کہ ہاں جی جو پارلیمان ہے وہ پارلیمان اگر ریکونسیلیشن کی طرف جاتی ہے تو وہاں وہ کرنا چاہتی ہے، اور ملاقاتوں کی بات میں دیکھیں وہ بھی ایک ڈسکریپنسی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان معاملات کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟
देखिए जब कहते हैं ना, इफ देयर इज ए विल देयर इज अ वे, अगर जब जरूरत होगी जी हाइब्रिड निज़ाम की, तो जी केस भी सारे जितने भी हैं जो अदालतों में चल रहे हैं, सजाएं हो गई हैं, वो भी रिवर्स हो जाएंगे। ऐसा हमने नवाज शरीफ के केस में देखा, ऐसा हमने मुख्तलिफ औकात में देखा, और ये माजी का हमारे बड़ी ये तारीख इससे भरी पड़ी है। आप मेरे ख्याल में यंग है, 90 की पॉलिटिक्स अगर हम देखें, जी कभी बेनजीर को इन करना है, कभी नवाज शरीफ को आउट करना है, कभी नवाज शरीफ को आउट करना है, बेनजीर को इन करना है, ये सारी चीजें पहले होती रही हैं। और अभी भी निज़ाम को जब पता होगा, देखें ना, ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके ऊपर भी चेक्स लगे हुए हैं। वो चेक्स अभी काम करना शुरू हो गए। सियालकोट का स्कैंडल आया, अभी कोई फैसलाबाद से आ जाएगा, कोई लाहौर से आ जाएगा। ये स्कैंडल्स वगैरह आते रहेंगे और इस तरह के मामला चलते रहेंगे। ये प्रेशर शुरू हो जाता है 1.5-2 साल के बाद, जब कोई हुकूमत आती है उसके ऊपर, और फिर वो आस्ता आस्ता चले जाते हैं। इसी तरह हमारे को तकरीबन 17-18 वज़ीर आज़म तब्दील हो गए, कोई भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सका है। तो ये चीजें जो है परमानेंट नहीं है हमारे पॉलिटिकल, चूंकि पॉलिटिकल निजाम हमारा इतना ही फ्रेजाइल है, इतना शेकेबल है कि किसी वक्त भी धड़म से गिर जाता है। तो ये जैसा कि मैंने पहले कहा है कि ये सियासतदानों को सर जोड़ के सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क को किस तरह चलाना है। जहां तक ये आप 14 अगस्त की बात कर रहे हैं, देखें तहरीक इंसाफ ने, जो मेरी मालूमात है, चंद साहब बेहतर समझते हैं, मेरे ख्याल में 14 अगस्त को एहतजाज नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की आज़ादी का आपकी मालूमात के मुताबिक नहीं होगा? नहीं, मैं कहता हूं कि नहीं होना चाहिए। मेरी जाती राय है, क्योंकि वो एक ऐसा दिन है कि हम सेलिब्रेट करते हैं एज ए नेशन, एंड दैट इन दिस टाइम और दिस ईयर लालचंद साहब कह रहे हैं सर शिराज साहब कि हम जश्न मनाएंगे। ऐसे सुने ना, एज वी सेलिब्रेटिंग दिस ईयर इज वेरी सिग्निफिकेंट दैट दिस इज पोस्ट मई वॉर जो हुई है हमारी, उसके तनाजर में, और फिर जो अमेरिका हमारी तरफ उसका टिल्ट आ गया है, वो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। वो अगर रेयर अर्थ मिनरल की बात करें पाकिस्तान में, ऑयल की बात करें, बाकी मामला तो इंडिया के साथ उसके मामला ठीक नहीं है। कोई कम से कम 40 दफा डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि उन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान एक सीज फायर करवाया है, वरना ये दोनों ममालिक आपस में न्यूक्लियर वॉर की तरफ चले जाते हैं। और फिर वो बार बार मोदी को यानी कि टाउंटिंग कर रहे हैं, उन पर उनको छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनको डीमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, और मोदी इज अंडर प्रेशर। तो एक ऐसे वक्त में हमारा जश्न आज़ादी का दिन मनाया जा रहा है बड़े एक नए जज्बे के तहत, तो उसके लिए जरूरी है। और BLA को भी बैन कर दिया गया है। एक देखे ना, वो हमारे फील्ड मार्शल के बयान को मतनाज़ा तौर पर न्यूक्लियर के हवाले से बयान कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, तो सेम टाइम अमेरिका ने जवाब तो नहीं दिया, जवाब दिया कि BLA जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको बैन करार दे दिया, उसको दहशतगर्द तंजीम करार दिया गया है। तो ये BLA कौन है जो बलूचिस्तान में गड़बड़ करती है? तो कैसे वक्त में जब हम सारी कौम एक सेलिब्रेशन की तरफ जा रहे हैं, अगर ये इसको पोस्टपोन करके 15 पे ले जाए, वैसे भी 15 को हम एहतजाज करते हैं इंडिया के खिलाफ। कश्मीरी जितने भी हैं वो समझते हैं कि इंडिया की आज़ादी का दिन होता है तो हम एहतजाज करते हैं, बैरूनी दुनिया में भी और पाकिस्तान के अंदर भी। लेकिन तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया है कि जहां पर वो अपने तहरीक इंसाफ का झंडा लेकर एहतजाज करेंगे, यानी या दूसरी तरफ पाकिस्तान का झंडा भी उनके हाथ में होगा, और वो सेलिब्रेट भी करेंगे 14 अगस्त का। तो ये इनका नैरेटिव है। और जहां तक ये मज़ामत की बात है या मज़ाहिरों की बात है, आजकल के दौर में आप ये देखें कि 16 से ज़्यादा बैरूनी जो ममालिक हैं उसमें तहरीक इंसाफ ने मुजाहरे किए हैं। ये देखें, इस मौजूदा दौर का सबसे बड़ी मज़ामत है। बाहर की दुनिया में हम घड़ी की सुइयों के साथ अपना वक्त गुजारते हैं 24 घंटे, और कब उठना है, कब जागना है, कब सोना है, हर इंसान अपने टाइम का पाबंद होता है। और जब मैं आपको ये टाइम दे रहा हूँ तो इसका भी मुझे जो लॉस हो रहा है वो मैं ही जानता हूँ। तो बेसिकली बाहर की दुनिया में इतने बड़े पैमाने पर लोग मुसलसल 2.5-3 साल से निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट इमरान खान। और लोग ये समझते हैं कि इमरान खान के साथ जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त नहीं हो रहा है। और ये इसका जहां पर हम झंडे
जहां पर हम पाकिस्तान के झंडे लहराते थे, जहां पर इंडिया के खिलाफ हम मुजाहरे करते थे, अब अगर पाकिस्तानी ही अपने सफारत खानों के खिलाफ मुजाहरे करें या फिर पाकिस्तानी ही जो है वो दुनिया के कैपिटल्स के बाहर, वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट हो, ये ब्रसल हो, बार्सिलोना हो, ये जिनीवा हो, वहां मुजाहरे करेंगे तो पाकिस्तान का इमेज तो बेहतर नहीं होगा। और जो इस वक्त लोग इंचार्ज और जो इस पाकिस्तान के इंटरेस्ट को देख रहे हो, उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि पाकिस्तान को जहां पर एक अच्छी आर्मी की जरूरत है, एक अच्छी क़यादत की जरूरत है, वहां पर पाकिस्तानियों की भी जरूरत है कि पाकिस्तानी जो है वो उनकी सपोर्ट के बगैर हम मुल्क को मुस्तहकम नहीं कर सकते, हम मुल्क की मैशत को ठीक नहीं कर सकते। ठीक है सर, आपका पॉइंट। हम ये चीजें नहीं कर सकते। तो ये जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा था वो रिफ्लेक्ट होता है बाहर की दुनिया में भी। और डोंट फॉरगेट कि हमारे जो टीवी चैनल हैं हम सब अच्छी की खबरें चलाएंगे, लेकिन जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक कोर बैठा हुआ है वो रोजाना की बुनियाद पर रोजनामा भेजता है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। तो अभी आप अच्छी खबरें चलाएंगे, लेकिन कौन ये डोंट फॉरगेट कि हमने 87-90 हजार अरब के करीब कर्जे देने, वो अमेरिका ने नहीं देने, वो चाइना ने नहीं देने, वो हम पाकिस्तानियों ने देने। और हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी मैशत को भी तबाह कर रहे हैं, अफरा तफरी फैलाकर। लोगों को रोजगार देना चाहिए, लोगों को मामलात अपने सेटल करने चाहिए। हम अच्छी खबरें चलाकर, सब अच्छी खबरें चलाकर अपनी जो है वो वक्त टपाव वाली पॉलिसी पे सर आ गया पॉइंट आपका। सर मैं लालचंद साहब से थोड़ा सवाल कर लेता हूं। सर लालचंद साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से जो है थोड़ा सा आपसे इंडिकेशन लेना चाह रहा हूं कि अदालत ने आज जो मरासला भेजा है ऑर्डर जेल की जानिब, उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी और केस पे मतलूब नहीं है तो आप उन्हें रिहा कर दें। अब क्या आपको फ्यूचर इसके रिपरकशंस नज़र आ रहे हैं कि क्या शाह महमूद कुरैशी साहब अगर रिहा होते हैं तो क्या वो पार्टी को लीड करेंगे, फिर क्या पार्टी में अब तब्दीलियां नज़र आएंगी? आप किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज़ को? और देखिए, जब भी किसी अगर केस में जमानत होती है या एक्विटल होती है तो ये नॉर्मल सी चीज होती है कि अदालत अपना वो जो भी फैसला होता है वो जेल की तरफ भेज देती है, वो कॉपी कि क्या फैसला हुआ है अदालत की जानिब से। मखदूम शाह महमूद कुरैशी वो जेल सिर्फ इसलिए भेजा गया कि वो इमरान खान से वफा कर रहे थे, उन पे दबाव था कि उनको छोड़ दे। जिस तरह आपने देखा जिन जिन लोगों ने इमरान खान को छोड़ा तो दबाव में या अपनी मर्जी से और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उनको जो है जेल से रिहा कर दिया गया। और जिन्होंने इमरान खान के छोड़ने से इनकार किया उनको जेल में रखा गया। उनमें मखदूम शाह महमूद कुरैशी भी एक थे। उनपे एक तासुर बनाने की कोशिश की गई कि उनकी शायद कोई डील है, लेकिन दरअसल हकीकत ये है कि उनके पास इतना स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद था, क्योंकि वो उस दिन ना लाहौर में थे 7 से लेकर 9 तारीख तक, और ना ही इस्लामाबाद थे। उनकी अहलिया जो थी वो अलील थी और वो कराची में मौजूद थे। यही वजूहत बनी है कि जिसके बुनियाद पे ये फैसले आ रहे हैं और उनकी एक्विटल हुई है। और बाय में उन पे कोई 57 के करीब केसेस हैं और अभी भी 5-6 केसेस उन पे रहते हैं। जहां तक लीड करने का मामला है तो इमरान खान गुज़िश्ता 2-2.5 सालों से जेल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो लीड करते रहेंगे। मखदूम शाह महमूद कुरैशी हमारे इंतहाई एक सीनियर जो है वाइस चेयरमैन भी हैं और सीनियर और बड़े ही एक संजीदा और मने हुए सियासतदान हैं। वो जब आजाद होंगे तो यकीनी तौर पर पार्टी को उसका बहुत ज्यादा फायदा होगा और वो इमरान खान के हुक्म के मुताबिक पार्टी में अपने फराइज इंशाल्लाह सरअंजाम देंगे और पार्टी को ज्यादा एक्टिवेट करेंगे। हमारी तरफ ज्यादातर, क्योंकि आपने देखा हमारे साथ जो है लीगल टीम्स ज्यादा है, पॉलिटिकल लोगों को चाहे वो केपीके हो, पंजाब हो, उनको मजबूर किया गया कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमसे अलग हो। तो अगर मखदूम साहब बाहर होते हैं तो ये बहुत बड़ा एडिशन होगा और ये एक राइट वे में, राइट डायरेक्शन में एक फैसला होगा जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यकीनन फायदा होगा। इसको अब किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से मुस्तरदी करेंगे ना आप इसको कि शाह महमूद कुरैशी साहब की ये रूमर सुनाई दे रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो एक रिलीफ दी जा रही है जान के, क्या इसमें कुछ सदाकत आप समझते हैं?
देखिए, कई चीजें ऐसी हैं, ये जो हाइब्रिड हुकूमत है वो चाहती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैलाई जाए। जी जैसे आपने शुरू में जिक्र किया, एक बंदा शख्स जिसको अपने पार्टी से ही निकाल दिया, तो जी आपका मौजू वो बना हुआ था कि वो ये कह रहा है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूरी पूरी कोशिश करती है कि पार्टी में इख्तलाफात हों, पार्टी में जो हमारी क़यादत है उनके खिलाफ गलत फहमियां फैलाई जाए। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं, ये इल्जामात लगते रहते हैं। लेकिन मखदूम शाह महमूद कुरैशी को अगर डील करनी थी तो वो 2 साल पहले कर लेते। उनको प्राइम मिनिस्टर बनने की भी जो है ये रूमर्स थी कि उनको ऑफर की गई है, लेकिन उन्होंने राइट अवे उनको जो है मुस्तरद कर दिया। मैंने नहीं किया, मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने किया, और ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे आती रही हैं और उन्होंने झेले हैं 2-2.5 साल इस उम्र में। वो एक बहुत ही सीजन पॉलिटिशियन है, ना उन पे चोरी का कोई इल्जाम है, ना करप्शन का इल्जाम है। पहले उनको एमपीओ के तहत रोका गया, फिर आपने देखा उससे एमपीओ में कोर्ट ने रिलीफ दिया तो उन पे वो साइफर वाला केस उन पे लगा दिया गया। और आपको हैरत होगी कि 9 मई के केसेस जो है उनमें इन्वॉल्वमेंट मखदूम शाह महमूद कुरैशी की 1 साल के बाद की गई। 1 साल के बाद जमनी जो है वो पर्चों में उनका नाम दिया गया था। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस चीज को मुस्तरद करती है, और अगर वो आजाद होते हैं और जितना जल्दी होते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको वेलकम करेगी। अच्छा शहनाज खान साहब, सर क्योंकि आप इंटरनेशनली अफेयर्स को भी देखते हैं, ख़ास तौर पे यूके में बैठ के, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस वक्त इंटरनेशनल क्या परसेप्शन है और क्या फ्यूचर देख रहे हैं, ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल साहब की डिप्लोमेसी जो जिस तरीके से की जा रही है, पाकिस्तान और अमेरिका में सफारती जो ताल्लुकात बढ़ रहे हैं, हमने देखे कि वो ट्रेड एग्रीमेंट हुए, उसके बाद इस वक्त जो है वो इंडिया के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन बनी हुई है। तो रिसेंट जो दौरा हुआ है उसमें क्या मामला तय पाए गए हैं, कुछ मालूमात अगर आप तक पहुंची हो तो काइंडली ज़रा बताएं। देखें, पाकिस्तान का कोई हाई प्रोफाइल डेलीगेशन जब बाहर की दुनिया में आता है तो मेरे समेत जितने भी पाकिस्तानी होते हैं उसको सपोर्ट करते हैं, और वो पाकिस्तान के लिए उसको एक नेक फाल समझते हैं, और हम उन पर एतमाद भी करते हैं। घर की लड़ाइयाँ घर में होती हैं, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग अपनी जगह होती है, और ये मेरा मैसेज भी होगा खास करके ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कि या पाकिस्तान के अंदर जितने भी नाजरीन हैं, कि जब आपका प्राइम मिनिस्टर, आपका फॉरेन मिनिस्टर, आपके आर्मी चीफ कहीं भी बाहर का दौरा करें तो उन पर एतमाद रखें, और घर के अंदर जो है ना वो चीजें चलती रहती हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में जब जाते हैं तो वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये जो दौरा हुआ है वहां पर सेंटकॉम में, वहाँ ज़ाहिर है बड़ी हाई प्रोफाइल दूसरे मुल्कों के भी आर्मी चीफ जनरल आए हुए थे, और नए चीफ ने हल्फ लिया और पुराने चीफ चले गए, और फिर उसके बाद फ्लोरिडा में उन्होंने एक खिताब भी किया जिससे जो भारत ने काफ़ी कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है कि उन्होंने एटमी हथियारों के इस्तेमाल की बात की है। और तो उसके बाद हमारे फॉरेन ऑफिस ने एक बड़ा सख्त बयान जारी किया है कि भारत जो है वो लायानी या लाऊ किस्म की गुफ्तगू कर रहा है या प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो होना तो ये चाहिए था, उसका जवाब तो ये होना चाहिए था कि कम से कम हमारा जो DGISPR है वो वीडियो जारी करते ताकि भारत के प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब दिया जाए कि एक्चुअली उन्होंने कहा क्या था। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क हैं और हमारे एटमी असासे महफूज हैं और हम एटमी हथियारों को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, जबकि भारत में प्रोपेगेंडा ये है कि उन्होंने ये कहा है कि ये एटमी हथियार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा यानी डिफरेंस है। तो इसका जवाब यही हो कि अगर वो वीडियो उस खिताब की तो वो जारी करें ताकि पता चले। और फिर बाद ब्रसल में भी उन्होंने 12 एक वहाँ पर मीटिंग अटेंड किया, वहाँ भी खिताब किया, लोग यूके से भी वहाँ पर गए हुए थे। लेकिन ये हमारी डिप्लोमेसी या हमारे साथ जो अमेरिका के ताल्लुकात हैं ये रिवाइव हुए हैं। बट डोंट फॉरगेट दिस कि ये पर्सनल टू पीपल कॉन्टैक्ट नहीं होते। ये मुल्क जो है वो अपने मफादात को पहले देखते हैं। अमेरिका लुक्स आफ्टर इट्स ओन इंटरेस्ट। मैं 2 दफ़ा अमेरिका में गया हूँ वहाँ के इलेक्शन कवर करने के लिए। नवंबर के महीने में मैं
पूरा 2 हफ्ते मैंने गुजारे हैं, 6 डिफरेंट स्टेट्स का मैंने दौरा किया है, पूरे करीब से इलेक्शन मैंने देखे। डोनाल्ड ट्रंप नो डाउट कि पाकिस्तान के साथ उसके इंटरेस्ट हैं, और वो इंटरेस्ट क्या है कि हमारा जो मैंने जैसे मेंशन किया है, ये रेयर अर्थ मिनरल्स आपके बलूचिस्तान में पाए जाते हैं, गिलगित बिल्तिस्तान में पाए जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में पाए जाते हैं, और 90% जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं या माइनर मिनरल्स उनको आप कह लें या मादनियात आप कह लें, ये चाइना ने दुनिया के अंदर वो राइट्स उसके खरीद रखे हैं। और चाइना के, ये भी मैं आपको खबर दे दूं, आपने फॉलो नहीं की होगी, कि चाइना के साथ जो ट्रेड एग्रीमेंट था डोनाल्ड ट्रंप का, वो आज खत्म हो रहा था, यानी ट्यूसडे टुडे। तो रात को कल यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है कि चाइना के साथ चूंकि मुज़ाकरात हो रहे हैं तो वो इसको बढ़ना था, तो 90 डेज के लिए फिर वो मुद्दत उन्होंने बढ़ा दी है कि ये 49% ही रहेगा, वरना 155 ऑटोमेटिकली लागू हो जाता है। तो अमेरिका फंस गया है बहुत बुरी तरह, और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिकली एक अहमियत है कि वो चाइना के बहुत करीब है, लेकिन हमारे लिए वरिंग सिचुएशन ये है कि हाउ कैन वी बैलेंस आवर बायलैटरल रिलेशन विद चाइना सेम टाइम विद अमेरिका। क्या हम चीन को छोड़ सकते हैं या चीन को से दूर हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि अमेरिका की पॉलिसी शिफ्ट होती है और चेंज होती रहती है, लेकिन चीन जो है वो हमारा टेस्टेड फ्रेंड है, और उसकी भी मजबूरी है कि वो पाकिस्तान के साथ लोकेशन ऐसी है कि वो पाकिस्तान की उसको ज़रूरत है, तो उसका ज़मीनी रास्ता है, फिर ग्वादर है, फिर उसको बहुत सारे तजारत यहाँ से उसका रास्ता गुजरता है ईस्टर्न यूरोप तक, दूसरे मुल्कों तक, तो वो अपना ट्रेड इस तरह भी बढ़ा रहा है। तो हमें अपने कार्ड बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ये अमेरिका की पॉलिसी जो है शिफ्ट हो जाती है। अब ये है कि अगर हमने, आखिरी जुमला कहने दें, अगर हमने भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर करना है तो फिर अब हमें ये देखना पड़ेगा कि चीन को हम एतमाद में लें, अमेरिका को एतमाद में लें, चूंकि मुसलसल मोदी डिनाई कर रहा है कि इंडिया ने ये जंग बंद नहीं कराई, बल्कि हमने डीजीएमओ की लेवल पर गुफ्तगू करके हमने ये जंग बंद किया। ये इस बात से डोनाल्ड ट्रंप बहुत इरिटेट हो गया है, बहुत गुस्से में है और नाराज है। ठीक है सर, आखिरी सवाल लालचंद साहब आपसे करूंगा, फिर प्रोग्राम को कंक्लूड करूंगा। सर 1-2 मिनट का आंसर दीजिएगा कि खासतौर पे दहशतगर्दी के हवाले से सर, जिस तरीके से यूएसए ने जो है वो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे हैं बलूचिस्तान के अंदर, उनको जो है वो टेररिस्ट करार दिया है, और आज के ही बयान के अंदर बिलावल जरदारी साहब ने ये कहा कि हम यूनाइटेड नेशन से इसको बैन करा के इंशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर जो तमाम इंटरनल मामलात जो जिससे दहशतगर्दी होती है उसको बहुत जल्द उसका खात्मा करेंगे। तो आप ऐसे पैट्रियट आप क्या समझते हैं कि अब पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो चीज़ अनासिर हैं उनका अब खात्मा होने लगा सर? जी वो देखें, हर पाकिस्तानी चाहता है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है वो हर पाकिस्तानी को इम्पैक्ट करती है, किसी को डायरेक्टली किसी को इनडायरेक्टली। पाकिस्तान की मईशत जो है वो खराब होती है, तबाह होती है, आपका टूरिज्म जो है वो बड़ा अफेक्ट होता है, आपका पूरी दुनिया में एक जो इम्प्रेशन बनता है वो बहुत ही गलत बनता है। इसलिए हर पाकिस्तानी चाहता है कि ये दहशतगर्दी खत्म होना चाहिए और हर सूरत में हमें उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ सवाल ये उठते हैं कि हम मुसलसल इनके खिलाफ ऑपरेशंस कर रहे हैं, दहशतगर्दों के खिलाफ हमें जो है वो एक टेम्पररी किस्म की हमें सक्सेस मिलती है, ये सक्सेस परमानेंट क्यों नहीं हो रही? क्या वजूहत है कि आज भी बलूचिस्तान में हमें पूरा इंटरनेट ही बंद, डेटा हमने बंद कर दिया है? क्या वजूहत है कि वहां पे जो एक इनोसेंट मासूम पाकिस्तानी जो वहां पे होते हैं और अपना लेबर का काम करते हैं उनको कत्ल किया जाता है? क्या वजह है कि हमारे नौजवान, खास तौर पर आर्म्ड फोर्सेस के नौजवान, हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज के नौजवान वो केपी में अपनी जानों का नजराना दे रहे हैं? क्या वजह है कि ये सारी चीजें हमारे खिलाफ हो रही हैं और हम उनको एक लंबे अरसे से उसको ठीक तरह से एड्रेस नहीं कर सके हैं? हमें भी अपनी पॉलिसी पे गौर करके हमें एक देरपा और एक पायदार किस्म के अमन के लिए कोशिश करनी है। ठीक है
تھینک یو سو مچ سر. لال چند صاحب آپ نے ٹائم دیا, شراز خان صاحب آپ نے ٹائم دیا, وحید گل صاحب نے ہمیں ٹائم دیا تھا. ناظرین اپنے میزبان عمر شریف لغاری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے گیسٹ کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.